নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, একজন ভিভিআইপি আমাদের দেশে, তার পেছনে যে সিকিউরিটি খরচা হয় সেটা কত টাকা হতে পারে? আপনারা বলবেন 2 লক্ষ, 5 লক্ষ, 10 লক্ষ, ম্যাক্সিমাম মাস গেলে এত টাকায় খরচা হতে পারে একজন ভিভিআইপির পেছনে। আমাদের দেশ তাই তো মোটামুটি খরচা করে, কিন্তু একটা ট্রাস্ট, অর্থাৎ রাম মন্দিরের যে ট্রাস্ট, সেখানকার জেনারেল সেক্রেটারি চম্পত রায়, তার সিকিউরিটির পেছনে কত টাকা খরচা হতো বলুন তো মাসে? 1 কোটি টাকা। 1 কোটি টাকা তার সিকিউরিটির পেছনে খরচা হতো। এবং কতজন সিকিউরিটি তাকে ঘিরে থাকতো? 400 জন সিকিউরিটি তাকে ঘিরে থাকতো। এই রকম খবর উঠে আসছে এই মুহূর্তে, এবং অবশ্যই সেই খবরটা নিয়ে প্রেস কনফারেন্সও করেছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুপ্রিয়া শ্রীলেট। এবং অবশ্যই যে খবরটা কিন্তু বিভিন্ন নিউজ পেপারে অলরেডি বেরিয়ে গিয়েছে, অবশ্যই সেগুলো গদি মিডিয়াতে দেখানো হবে না, কিন্তু এই খবর সত্যি। এই খবর সত্যি যে চম্পত রায়, যিনি রাম মন্দির ট্রাস্টের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন, এটাই তার পরিচয় ছিল, এটাই তার পদ ছিল। সেই চম্পত রায়ের পেছনে সবসময় 400 জন মানুষ থাকতেন তাকে সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য। তিনি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা উঠে আসছে, এই যে 1 কোটি টাকা এই 400 সিকিউরিটিকে দিতে হতো 1 কোটি টাকা মাস গেলে, সেই টাকাটা আসতো কি করে? তার কাছে এত টাকা আসতো কি করে? এই প্রশ্নগুলো উঠে আসছে, এবং এই প্রশ্নগুলো উঠছে শুধুমাত্র তহবিল তছরূপ ঘটনাটা সামনে আসার পর থেকে। চম্পত রায় ইতিমধ্যেই তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, আপনারা জানেন, কিন্তু পদ থেকে ইস্তফা দিলেও তিনি এখনো গ্রেপ্তার হননি। এবং এই 400 সিকিউরিটি যুক্ত চম্পত রায়, তিনি এখনো পর্যন্ত ধরা হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে, এবং ধরা হয়েছে 8 জন নিচু তলার কর্মী যারা, তাদেরকে। এবং চম্পত রায় তিনি এখনো পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি শুধুমাত্র তার এই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের খবর সেই সংক্রান্ত উঠে আসছে, আপনাদের সামনে রাখছি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে ফ্যাক্টরটা, চম্পত রায়ের এত প্রভাব প্রতিপত্তি হলো কিভাবে যে তার সিকিউরিটির জন্য মাস গেলে 1 কোটি টাকা খরচা করতে হয়, এবং খরচাটা যে তিনি করতেন সেই টাকাটা তিনি পেতেন কোথা থেকে? এবং তার সিকিউরিটির জন্য 400 সিকিউরিটি লাগেই বা কেন? 400 জন সিকিউরিটি তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো। গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। এবং আরো একটা তথ্য আপনাদের জানাই, যে এই যে সিকিউরিটি এজেন্সিটা, সেটাও বিহারের একজন প্রাক্তন এমপি, তার নিজের সিকিউরিটি এজেন্সি। সেখান থেকে 400 সিকিউরিটি তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সম্পূর্ণটা আপনারা শুনুন সুপ্রিয়া শ্রীনেট, কংগ্রেস নেত্রী, কংগ্রেস স্পোকসপারসন, তার মুখ থেকে। তারপর একদম আপনাদের মতামত এই সামগ্রিক বিষয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र के सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो लोग बोल ही रहे हैं तो आरएसएस के बारे में पुरानी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे उनके लिए? क्या यह सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? यह है इनका दौर। और शुरुआत में एक और सवाल से करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। शायद देर रात को लौटे हैं, आप लोगों को तो खैर सवाल पूछने का मौका उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे
कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है। क्या हिंदू धर्म की, हिंदू अनुयायियों की, हिंदुओं की आस्था की ये इज्जत है आपके मन में? आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को ये रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है। क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त, गोपनीय एसआईटी गठित करी, और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है। ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है? 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है। इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए हैं, उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा। 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में एक आता है, आपके घर में अगर चोरी हो जाए आज, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, रिपोर्ट लिखाइएगा, एफआईआर होगी, पुलिस आएगी, लोगों को उठाएगी, रिमांड पर लेगी, और उसके बाद उनको ठोक बजाएगी और सच उगलवा लेगी। क्योंकि पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर की चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। यहां पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया, और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मजे की जिंदगी जी रहे, और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। एफआईआर में नाम टिन्नू पिन्नू, पता नहीं किसका किसका नाम है, छोटे छोटे लोगों का। ये टिन्नू पिल्लू ये सब चोरी कर रहे थे मंदिर में, और बड़े लोग बैठे आंख मूंद कर राम भजन कर रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि एफआईआर में लोगों का नाम नहीं आया, छुटपुटिए गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े बड़े डाकू स्वच्छंद घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं अब मेन किरदार की भी बात करना चाहती हूं। आनन फानन में एसआईटी की रिपोर्ट आई, और शपथ लगाने के बाद चंपत राय बंसल, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे, वही आदि अनंत बने हुए थे ट्रस्ट का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा देने से बच जाएंगे चंपत राय जी? चंपत राय जी इस्तीफा देते हैं और उनको जैसे इजी रूट से निकाल दिया गया। पहले दिन से कवायद है कि उनको बचाया जाए,
लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा महापाप हुआ है। ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसी से ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। 40 दिन में 70 चोरी सामने आ गई, तो शुरू से ऑडिट कैसे होगा? और ट्रस्ट पर अभी मैं बोलती हूं उसके पहले, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जो पढ़ी मैंने, मेरी रूह कांप गई। ये कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र के सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो लोग बोल ही रहे हैं तो आरएसएस के बारे में पुरानी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे उनके लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर होगा। और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी।